I believe she married her brother, which is totally illegal. Although it's a lovely couple, actually, but it's a little bit on the illegal side. Darling, I love you very much. Good night, brother. Let's go to bed. Good night. तो दोस्तों, अमेरिका की एक मुस्लिम सांसद इल्हान उमर, जो कि न सिर्फ भारत के ऊपर जहर उगलने के लिए फेमस है, बल्कि इल्हान उमर जिस देश में शरण लिया यानी अमेरिका में, उसी देश अमेरिका को इल्हान उमर आए दिन न सिर्फ कोसती रहती है, बल्कि बाकायदा अमेरिका की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका फायदा उठा करके अमेरिका पर ही हमला करती रहती है। लेकिन अब इसी इल्हान उमर के ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 मई 2026 को फ्लोरिडा में एक रैली के दौरान मुस्लिम सांसद इल्हान उमर पर जो बयान दिया वह पूरी दुनिया में हलचल मचा रही है, जिसकी एक झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं। Ilhan Omar, you ever hear of her? And then she married a brother to come in. I don't know, you're not. But I think, I would imagine they're looking at her. I have nothing to do with it. I would imagine. Of course I have nothing to do. I have nothing, but I believe she married her brother, which is totally illegal. Although it's a lovely couple, actually, but it's a little bit on the illegal side. Darling, I love you very much. Good night, brother. Let's go to bed. Good night. सुना ना आपने, ये है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने मंच से उस इल्हान उमर की बखिया उधेड़ दी, जो अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलने और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाने के लिए जानी जाती हैं। ट्रंप ने इल्हान उमर को न सिर्फ घेरा, बल्कि उनके अतीत और कथित घोटालों को लेकर उन्हें पूरी दुनिया के सामने भिगो कर धोया। ट्रंप ने इल्हान उमर को एक धोखाधड़ी करार देते हुए उनके सोमालिया कनेक्शन से लेकर उनकी निजी जिंदगी के विवादों तक सब कुछ सार्वजनिक मंच पर लाकर रख दिया। चलिए आपको सुनाते हैं ट्रंप का वो पूरा भाषण, जिसमें उन्होंने इल्हान उमर और उनके जैसे ठगों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। To further stop Medicare and Medicaid from being looted by criminals and thugs, we've launched a war on fraud. You've been watching it in the papers. We're all over Minnesota, California, all over the place. They're taking down hundreds and hundreds and even thousands of people a week and a day. It's led by great Vice President J.D. Vance. He's doing a great job. I said, J.D., I want that job. I want to do it as president. They said, you better, let's do a little delegation, please. But J.D.'s done a great job. Thousands and thousands of people are, it's a fraud. I mean, look at the wonderful country. It's a beautiful country. You should try it sometime. Somalia. It's a beautiful place. It's got no government. It's got no military. It's got no anything. It's got one thing that's really strong, crime. It's got a lot of crime. They have no police. All they do is run around shooting each other. It's filthy dirty, disgusting dirty. It's a horrible place. They come here, and Ilhan Omar, you ever hear of her? They have nothing but crime, poverty, pollution. Everything is horrible over there. Nothing good. They say it's the worst country anywhere in the world, that we got some beauties out there, but it's the worst. And then she comes here from Somalia, and she tells us how to run the United States of America. She says, the Constitution gives me certain rights. And I demand that I be given these rights. Get the hell out. What a phony. And then she married a brother to come in. I don't know, you're not. But I would imagine they're looking at her. I have nothing to do with it. I would imagine. Of course I have nothing to do. I have nothing, but I believe she married her brother, which is totally illegal. Although it's a lovely couple, actually, but it's a little bit on the illegal side. Darling, I love you very much. Good night, brother. Let's go to bed. Good night. Isn't she despicable? I can't stand watching her. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से भारत को गाली देने वाली इस महिला को बेनकाब किया है, उसके लिए कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को एक बार थैंक यू तो बोल ही दीजिए।
सोमालिया से भागकर अमेरिका पहुंची और फिर वामपंथियों के समर्थन से नेता बनी ये मुस्लिम महिला इल्हान उमर है। डोनाल्ड ट्रंप ने इल्हान उमर पर जो बयान दिया है उसे आप कम से कम 10 बार लगातार सुनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले भारत हिंदुओं और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलने वाली इस महिला की भारत विरोधी हरकतें देख लीजिए। 2022 में इल्हान उमर पाकिस्तान के खर्चे पर पीओके पहुंच गए और वहां जाकर भारत से कश्मीर को आजाद करवाने की बातें करने लगी। भारत में जब किसान आंदोलन की आग लगाई गई थी, उस वक्त भी इस महिला ने उस आग में घी डाला था। डीप स्टेट से पैसा लेकर इसने कहा था कि मोदी के भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। अब इसी भारत विरोधी महिला का डोनाल्ड ट्रंप ने बुरा हाल कर दिया है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इल्हान उमर के ऊपर ऐसे बयान पर कई लोग डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कई लोग इसको विरोध भी कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक रैली के दौरान जिस अंदाज से मुस्लिम सांसद इल्हान उमर का मजाक उड़ाया और उसकी एक्सेंट की नकल की और मन से जिस तरह से गुड नाइट ब्रदर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वह ठीक नहीं है। लेकिन इल्हान उमर जो कि सोमालिया में जन्मी, लेकिन सोमालिया में जो सिविल वार हुआ उससे बचने के लिए इल्हान उमर ने अमेरिका में एज ए रेफ्यूजी शरण लिया और बाद में अमेरिका की नागरिक भी बनी। और इसी इल्हान उमर को अमेरिका ने वो सब कुछ दिया, नेम, फेम, इज्जत, लेकिन इल्हान उमर अमेरिका की होने के बजाय उसका दिल उम्मा यानी पाकिस्तानियों की तरह मुस्लिम ब्रदरहुड की फैंटेसीज। और यही कारण है कि इल्हान उमर ने इंडिया से उसका कोई वास्ता न होते हुए भी इंडिया के ऊपर और ख़ास तौर से कश्मीर पर भारत के खिलाफ कई बार भारत के खिलाफ जहर उगला प्रोपेगेंडा किया। और यही नहीं, इल्हान उमर ने अमेरिका को भी टारगेट करना शुरू किया, साथ ही गाजा फिलिस्तीन पर इजराइल को भी निशाने पर लिया। और यही वजह है कि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इल्हान उमर को अमेरिकन हितों के खिलाफ काम करने का आरोप भी लगाया। और अभी ये जो बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया इल्हान उमर के ऊपर, इस पर कई अमेरिकन सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।